Okay students, welcome to another video of genetics, and we have been discussing the different genetic disorders. So far we have given many examples of genetic disorders, and in genetic disorders there were many examples of autosomal recessive disorders that we discussed. Then we also discussed the chromosomal aberrations, Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome. Now today we are going to discuss sex linked disorders. Yes, we have to give some examples of X and Y linked disorders, and we have to focus on X linked disorders generally so far as syllabus is concerned, class 11th and NEET syllabus is concerned. We are supposed to discuss X-linked recessive disorders, where we have to give some examples, not all. There are so many examples of X-linked recessive disorders, right? But first of all, we will we will define what do we mean by X-linked disorders. ये जो X-linked disorders हैं जिनकी हमें बात करनी है, जहाँ पे हमें कुछ examples देनी है, तो ये क्या हैं, sex-linked disorders क्या हैं? ये जो sex-linked disorders हैं, these involves the genes present on sex chromosomes. यानी इनके जीन्स जो होते हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के जो जीन्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं. एंड वी नो दैट सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं फीमेल्स में XX और मेल्स में XY. ओके, नाउ ये जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, तो इनको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ये X लिंक्ड हो सकते हैं, यानी जीन जो है वो X पे हो सकते हैं. X लिंक्ड डिसऑर्डर्स जिनकी हमें बात करनी होगी, X-linked disorders, and they can be Y-linked disorders. यानी ये जो कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, इसका जीन या तो X पे होगा, X क्रोमोसोम पे होगा, या Y क्रोमोसोम पे होगा, राइट? ठीक है, तो these are X-linked disorders और Y-linked disorders. X-linked disorders जो हैं उनको कभी कभी ऐसे भी हम कहते हैं, these are also called Hollandric inheritance Hollandric disorders. That means they are because of genes, alleles which are present on the Y chromosome, and you know that, and offspring which is male because of Y, and that offspring receives the Y chromosome only from the male individual, from the father. So this is contributed only by the father if this disorder, Y-linked disorder, is present anywhere, right? Now, so far as X-linked disorders are concerned, and we have discussed the X-linked disorders, we have mentioned the X-linked disorders. What I mean, the disorder can be dominant, it can be recessive, depending upon the type of genetics, inheritance, it can be dominant or recessive, right? So we can also classify this into two types. That means it may be X-linked dominant, or it can be X-linked recessive, right? So this disorder can be X-linked dominant. Only one gene, one allele is enough for the expression of the trait, for the expression of this disorder character, right? In X-linked recessive disorder, generally when the condition is recessive, so two alleles are required for the expression of the gene, homozygous condition, as we have discussed earlier also, right? Now, so far as this Hollandric disorders are concerned, I mean Y-linked disorders are concerned, they can be also classified into dominant and recessive. They can be also classified into dominant, Y-linked dominant and Y-linked recessive. But as we know that generally ये जो Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम ज़्यादा जेनेटिकली एक्टिव नहीं होता है. I mean ये ज़्यादा जो इसका जो है, इसमें ज़्यादा जीन्स नहीं है. What I mean,
राइट, इस पे उतने ज़्यादा जीन्स नहीं है, तो उतने ज़्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं, मतलब ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो वाई लिंक्ड हैं, उतने ज़्यादा हमें पता नहीं है उनके बारे में. We don't have a lot of information regarding the Y-linked disorders, as we have many examples of X-linked disorders, both X-linked dominant and X-linked recessive. Now, here I would like to tell you, there are so many examples of X-linked dominant disorders, and there are so many examples of huge examples of X-linked recessive disorders. We are not supposed to go through all X-linked dominant and all X-linked recessive disorders. Our main focus is, हमारा जो main focus है वो कुछ examples पे है, जो examples यहाँ से हैं, that is X-linked recessive disorders, जिनको हमें पढ़ना है. So far as our books, so far as our references, and so far as our requirement is concerned. तो we have to give examples of X-linked recessive disorders. तो इसमें भी अगर आप देखें जो NCERT की बुक्स हैं या जो बाकी रेफरेंस बुक्स हैं, तो दो एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें जानने हैं, जिन पे हमें बात करनी चाहिए. तो वो जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ से हैं X-linked recessive disorders से. तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो है, एक तो है हीमोफीलिया, यस, एक है हीमोफीलिया, और दूसरा जो है, दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस. तो ये दो एग्जाम्पल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द वेरियस MCQs दैट आर आस्क्ड इन आवर exams, that are asked in our NEET exams particularly, right? So let me move to the same topics, that is hemophilia and color blindness. And let me tell you again, hemophilia and color blindness, these are two examples of X-linked recessive disorders, not X-linked dominant, X-linked recessive disorders. So you can understand the condition here that this disorder will generally appear in the homozygous condition when we talk about the recessive. But X-linked recessive disorders, so far as X-linked recessive disorders are concerned, they have some sort of different inheritance, different genetics. When we compare the X-linked recessive disorders with autosomal recessive disorders, where generally two genes are required for the expression of the gene, that condition should be homozygous, otherwise the trait will not appear in the individual. If there is heterozygous condition, one gene is normal, another is abnormal, that is following the Mendelian inheritance. When one normal gene is there and that is dominant over the another abnormal gene which is recessive, the genetic disorder will not appear in the heterozygous condition, that will only appear in the homozygous condition. But here in X-linked recessive disorder, we are going to see some sort of a different condition that is very different from the autosomal recessive disorders. How this X-linked recessive disorder like hemophilia or color blindness is different from the autosomal recessive disorders, let us discuss by giving the example of hemophilia and color blindness. If you will understand this hemophilia, right, if you will understand the color blindness, we will discuss their inheritance, we will discuss their genetics. You will understand that this X-linked recessive disorders are completely different from the autosomal recessive disorders, right? So let's start from this example in order to understand these things. Hemophilia. What is hemophilia? So what is hemophilia? So what is hemophilia? This is the point of discussion in present video, right? So let's write here hemophilia. This is our topic, hemophilia. तो क्या है ये हीमोफीलिया, क्या है? यहाँ पे अगर हम लिटरली देखें वर्ड्स, इस टर्म को लें या वर्ड्स को देखें, तो हीमो जो है, हीमो मीन्स ब्लड, हीमो का मतलब होता है ब्लड, राइट, और फीलिया का मतलब होता है फीलिया का मतलब होता है लविंग, फीलिया का मतलब होता है लविंग. तो ये एक्चुअली क्या है? ब्लड लविंग. ये एक ब्लीडर्स डिजीज है,
ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमंस में, एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन humans, right? So many examples are there, and so many different types are there so far as bleeding disorders are concerned in humans. लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, तो इस हीमोफीलिया में भी बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जहाँ पे बॉडी की जो एबिलिटी है ब्लड क्लॉटिंग की, ब्लड कोगुलेशन की, वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, वो डिफेक्टिव बन जाती है। तो एज ए रिज़ल्ट जब बॉडी में किसी भी जगह पे किसी भी सूरत में ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड जो है वो ऊज आउट हो जाए ब्लड वेसल से, तो उसका जो क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो होता नहीं है। तो उस सूरत में क्या हो जाता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है इस इंडिविजुअल से। किसी जब फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी पे कहीं पे ट्रॉमा हो जाए, या कोई जो है सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए इसकी बॉडी पे, राइट, जहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर हो, तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड ये जो इंडिविजुअल है ये मर भी सकता है, डेथ हो सकती है इसकी। तो इसी कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड इट इटसेल्फ इंक्लूड्स मेनी टाइप्स देयर, बट it is one of the example of bleeding disorders in humans where there can be hemorrhages in the body, loss of blood in the body in different regions of the body, right? So how we can define this and how we will explain this, let's go ahead. तो ये जो एक्चुअली हीमोफीलिया है, ये बहुत पहले एक बायोलॉजिस्ट ने, एक डॉक्टर ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था जॉन कॉनरैड ऑटो इन 1803 में ये डिस्कवर किया गया। 1803 में ये जॉन कॉनरैड ऑटो ने डिस्कवर किया था ये डिजीज, इस डिसऑर्डर के बारे में बोला था, व्हाट इज नोन एज हीमोफीलिया। तो ये हीमोफीलिया जो है, हाउ वी कैन डिफाइन दिस हीमोफीलिया, वी कैन से इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर और इट इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। It's a hereditary disorder, right, in which or where the body's clotting mechanism is impaired. Where the body's clotting mechanism is impaired. बॉडी का जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, नॉर्मली ब्लीडिंग हो जाए कहीं पे तो उसके बाद वो बंद हो जाता है कुछ समय के बाद। अगर छोटी ब्लड वेसल है तो कम ब्लड वहाँ से निकलेगा, 6-7 मिनट के बाद वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे जो बॉडी की प्रॉब्लम है, माइनर इंजरी भी हो जाए किसी वजह से, तो बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, और उस सूरत में इवन ए माइनर इंजरी कैन कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। तो इसी कंडीशन को कहते हैं हीमोफीलिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, यानी ये डिसऑर्डर पास ऑन हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अगर ये जीन उनके एक्स क्रोमोसोम्स पे है, राइट, तो फिर चांसेस हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें से कोई इंडिविजुअल होगा जिसको ये डिसऑर्डर होगा, और वो इस डिसऑर्डर को इस तरह से, इस अलील को, इस जीन को पास ऑन करेगा टू द अपकमिंग जनरेशंस, राइट। तो दैट आई मीन हेरिडिटरी डिसऑर्डर। तो ये एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की जो एबिलिटी है टू क्लॉट द ब्लड वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वो डिफेक्टिव बन जाती है, राइट। ओके, नाउ क्योंकि हमने पहले ही बोला, क्योंकि पहले ही बोला ये जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, राइट, ये हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है, या
जो और भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से। जैसे हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में देखा था, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की हमने बात की थी, या फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया की हमने बात की, या एल्केप्टोन्यूरिया एक डिसऑर्डर है, गैलेक्टोसीमिया एक डिसऑर्डर है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। और वहाँ पे जनरली हम जो चीज़ देखते हैं कि डिसऑर्डर तभी अपीयर हो जाएगा, उसके सिम्टम्स एंड साइंस तभी एक इंडिविजुअल में अपीयर हो जाएंगे जब उसमें होमोजाइगस कंडीशन अराइज होगी। अगर होमोजाइगस कंडीशन अराइज नहीं होगी तो रिसेसिव एलील जो है वो F2 जनरेशन में राइट अपीयर नहीं हो जाता है। वंस देयर इज होमोजाइगस कंडीशन इन द इंडिविजुअल देन एंड ओनली दिस डिसअपीयर विल ऑकर, आई मीन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जनरली जो मेल होता है, जनरली जो मेल होता है, मेल इज अफेक्टेड, जनरली द मेल इज अफेक्टेड, यस। ये कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की बिल्कुल नहीं थी। वहां पे इक्वल चांसेस थे, 50-50% मेल में हो सकता था डिसऑर्डर, फीमेल में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, मेल इज जनरली इफेक्टेड, जो मेल इंडिविजुअल होगा वो ज़्यादातर इस डिसऑर्डर से इफेक्टेड होगा। और फीमेल्स जो हैं आर जनरली कैरियर्स, females are generally carriers. So these two important features make the X-linked recessive disorders different from the autosomal recessive disorders. Here generally the male is affected, males are more affected than the females, and females जो हैं females are generally carriers, उनमें जीन होगा, उनमें इस डिसऑर्डर के लिए जीन होगा, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं होंगे, उनमें डिसऑर्डर नहीं होगा, कैरियर्स होंगे, that they act as only the carriers of this allele, this gene, but they are not affected. Females are not affected, right? Females अगर affected हो सकती हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करें, एक्सप्लेन करें, तो फीमेल्स एक ही सूरत में इफेक्टेड हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीमोफीलिया अलील को दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है, लेट्स से दिस इज एक्स क्रोमोसोम, और इस पे इसका एलील होता है, राइट, एक्स क्रोमोसोम पे इसका एलील होता है, लेट्स राइट हियर ए सुपरस्क्रिप्ट एच फॉर हीमोफीलिया, यानी इस एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के लिए जीन है, ओके। इस पे जो जीन है, मतलब आई मीन टू से वो मिसिंग है, उसमें म्यूटेशन है, उसमें डिफेक्ट है, बहुत सारे टाइप्स की म्यूटेशंस हो सकते हैं उस जीन पे, उस जीन में जो एक फैक्टर के लिए कोड करता, जो क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी था, जो एक फैक्टर के लिए कोड करता, जो क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है फॉर द एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ द क्लॉटिंग, और वो जीन यहाँ पे है, उस जीन में प्रॉब्लम है, उस जीन में डिफेक्ट है, या वो जीन कंप्लीटली मिसिंग है, वो भी हो सकता है, राइट। तो उसको हमने डिनोट किया H से, इस कंडीशन को हमने डिनोट किया H से, और यहाँ पे जो मैं दूसरा H लिखूंगा, यहाँ पे वो दूसरा X जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो उस पर ये अलील नहीं है, ये डिफेक्टिव अलील नहीं है, राइट। इस पे एक नॉर्मल एलील है, इस एक्स पे एक नॉर्मल एलील है, तो ये देखिए इस फीमेल को आप देखिए, इट इज हैविंग ए नॉर्मल एक्स, उस पे एक नॉर्मल जीन है एक क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, राइट, एक क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जीन इस एक्स पे है, लेकिन इस एक्स पे जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जीन है, या तो वो डिफेक्टिव है, उसमें म्यूटेशंस हुई हैं बहुत सारे टाइप्स की, या वो कंप्लीटली मिसिंग है, तो उस कंडीशन को हमने एच से डिनोट किया। तो लेकिन इस फीमेल में ये डिसऑर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके एक एक्स पे एक नॉर्मल एलील है, और वो नॉर्मल एलील जो है दैट इज इनफ फॉर कोडिंग a clotting factor, that will code for a clotting factor, and that clotting factor will help in the process of blood clotting. That may be factor 8, that may be factor 9, that may be any other factor, for example, right? So इस x पे एक नॉर्मल एलील है, इस x पे, तो ये जो फीमेल है ये एक कैरियर है, ये कैरियर है हीमोफीलिया के लिए, लेकिन इसको हीमोफीलिया नहीं है। अब
जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो जिस चीज़ की मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ये है कि इस फीमेल को कब हो सकता है हीमोफीलिया, इन ओनली वन कंडीशन। वो ये है अगर मैं इस एक्स पे भी ये एच लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे इस फीमेल के लिए क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जीन जो है वो डिफेक्टिव है या वो जीन जो है दोनों एक्स पे मिसिंग है, तो उस सूरत में ये जो है आप देख सकते हैं ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। तो इस होमोजाइगस कंडीशन में फीमेल को भी हीमोफीलिया हो सकता है। व्हेन बोथ द एलील्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स फॉर एनी क्लॉटिंग फैक्टर आर मिसिंग, यस दैट्स इट। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे किसी क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जो जीन्स होने चाहिए थे वो मिसिंग है या वो डिलीटेड हैं, डिलीशन है, उनमें म्यूटेशन है, राइट। तो ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, ये एक रेयर कंडीशन है। ये जो कंडीशन है ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। क्यों ये रेयर क्यों है? हो सकता है ये कंडीशन अराइज होने के लिए जो है ज़रूरी है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, इस फीमेल के जो पेरेंट्स हैं, इसका जो फादर है और इसकी जो मदर है, उनमें दोनों में ये जीन होना चाहिए, यानी वो उनके एक्स क्रोमोसोम्स पे ये अलील होना चाहिए फॉर हीमोफीलिया। यानी इसका फादर जो होगा फॉर एग्जांपल इस फीमेल का जो होमोजाइगस कंडीशन में है और इसको हीमोफीलिया है, राइट, तो इसके फादर की जो कंडीशन होगी वो ये होगी, इसके फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे भी हीमोफीलिया के लिए अलील है, और इसकी मदर जो होगी या तो वो भी हीमोफिलिक होगी, होमोजाइगस, या एटलीस्ट वो कैरियर होगी, देखिए यहाँ पे एक एक्स पे मैंने ये हीमोफीलिया के लिए अलील को दिखाया, राइट। तो इस सूरत में अगर आप यहाँ से ये एक्स लेंगे और यहाँ से भी ये एक्स लेंगे, ये मदर का एक एक्स है जिसपे हीमोफीलिया के लिए जीन है, और ये यहाँ पे फादर के पास भी ये एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी हीमोफीलिया के लिए जीन है, तो यहाँ पे कंडीशन अराइज होगी, दैट इज XH एंड XX, दोनों एक्सेस पे हीमोफीलिया के लिए जीन, ये कंडीशन है। लेकिन ये बहुत रेयर है कि ये फादर जो है इसका ये भी हीमोफिलिक है और ये जो मदर है इसकी ये कैरियर है या ये हीमोफिलिक है। तो ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। जनरली क्या हो सकता है, एक पेरेंट जो है वो जो है वो इफेक्टेड हो सकता है, या तो ये फीमेल जो है, ये इसकी मदर जो है ये कैरियर हो सकती है और ये नॉर्मल होगा, या यही हीमोफिलिक होगा, इस पे हीमोफीलिया के लिए जीन होगा और ये जो है ये नॉर्मल होगी। तो जनरली ये कंडीशन जो है हीमोफिलिक कंडीशन फॉर फीमेल, ये एक रेयर कंडीशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, राइट। तो व्हाट आई मीन, जनरली जो फीमेल होगी वो सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए वो कैरियर हो सकती है, और एक ही कंडीशन में उसको हीमोफीलिया हो सकता है या कोई और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे उस डिसऑर्डर के लिए जीन्स होंगे, अलील्स होंगे। अगर एक एक्स पे अलील होगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन अराइज होगी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में फीमेल को कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, फीमेल को सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगी। हालांकि फीमेल में भी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, आई मीन साइंस एंड सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं इवन इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो मैं बाद में आपको बोलता हूँ। लेकिन जनरली यहाँ पे सो फार एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर कंसर्न, जनरली जो नॉर्मली देखा गया है वो ये है कि फीमेल जो है वो कैरियर हो सकती है और इफेक्टेड एक ही सूरत में हो सकती है जब उसकी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे एक डिफेक्टिव एलील होगा डिसऑर्डर के लिए, राइट। लेकिन मेल की कंडीशन जो है वो बहुत डिफरेंट है। वो मैं आपको बता दूं कि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स थे। अब मेल को देखिए, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई, राइट। तो अगर इस पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूं, H लिखूं, सुपरस्क्रिप्ट, शो दैट दिस X इज कैरिंग द जीन फॉर द हीमोफीलिया, तो इसको डेफिनेटली ये हीमोफीलिया होगा क्योंकि इसके पास तो दूसरा नॉर्मल एलील है ही नहीं, क्योंकि दूसरा X है ही नहीं इसके पास जो दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है वो Y क्रोमोसोम है, तो उस पे कोई एलील नहीं है, कोई नॉर्मल एलील नहीं है जिससे ये मेल इंडिविजुअल बच जाता डिसऑर्डर से।
तो इस मेल इंडिविजुअल को डेफिनेटली साइन्स एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, क्योंकि इसके पास जो एक्स था, एक ही एक्स था, उसके पास, उस एक्स के पास अलील है, जीन है इस डिसऑर्डर के लिए। तो इस कंडीशन को, क्योंकि हमेशा एक ही अलील होगा, यहाँ पे एक्स पे जो होगा, एक्स एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो एक ही अलील होगा, तो इस कंडीशन को हम कभी कभी हेमिजाइगस भी कहते हैं, हेमिजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन को कभी कभी हम हेमिजाइगस कंडीशन भी कहते हैं, हेमिजाइगस। हेमी मीन्स हाफ, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो हमेशा एक ही अलील होगा, वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल। और जब एबनॉर्मल होगा, जब एबनॉर्मल अलील होगा तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर डेफिनेटली अपीयर होगा मेल में। That is why I told you males are generally affected, females acts as carriers. So we have to understand this point. If you have any confusions, right? So you can go back, you can repeat the video, you can आप फिर से इस वीडियो को दोहरा सकते हैं, आप फिर से इन चीज़ों को सुन सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बाद में समझ आ जाएगा। तो फीमेल के पास क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक एक्स पे डिफेक्टिव एलील होगा भी हीमोफीलिया के लिए या किसी और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए, लेकिन दूसरे एक्स पे नॉर्मल जीन है और वो नॉर्मल जीन जो है वो काफ़ी है डिसऑर्डर को बचाने के लिए, वो सिम्टम्स को अपीयर नहीं होने देगा, राइट। तो फीमेल जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो बच जाएगी, राइट, हमेशा बच जाएगी। तो वो फीमेल जो है वो यूजुअली एक्ट करेगी एज अ कैरियर। लेकिन मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और जब भी इस एक्स क्रोमोसोम पे एक डिफेक्टिव एलील होगा किसी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए, तो डेफिनेटली मेल को ये डिसऑर्डर होगा और साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, राइट। ओके, नाउ अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, कि अगर हम इसकी इनहेरिटेंस को थोड़ा सा डिस्कस करें, तो मान लेते हैं ये जो फीमेल है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रॉसेस बनाए हैं, राइट, क्रॉसेस दिए हुए हैं, मैंने कुछ इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया है, तो उनकी कंडीशन क्या है मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं ताकि समय बच जाए, ताकि टाइम बच जाए। तो ये जो फीमेल है इसको देखिए आप, एक्स ये फीमेल है ऑब्वियसली, और ये जो है ये मेल है। यहाँ पे मैंने एक एक्स पे ये एच लिखा है, तो इसका मतलब है एक नॉर्मल एलील है इस फीमेल के पास, और दूसरा जो है वो डिसऑर्डर के लिए एलील है, डिफेक्टिव एलील है, मिसिंग एलील है, राइट। तो ये फीमेल जो है ये कैरियर है, लेकिन इस मेल को देखिए, ये मेल जो है ये हीमोफिलिक है, ये एक हीमोफिलिक मेल है, क्योंकि जो इसके पास एक्स क्रोमोसोम है उस पे नॉर्मल एलील नहीं है, राइट, एक क्लॉटिंग फैक्टर के लिए एलील नहीं है। तो ये एक कैरियर फीमेल है और ये एक हीमोफिलिक मेल है। अब इन दोनों की मैरिज की हमने, राइट, दैट इज व्हाट आई मीन, अ हीमोफिलिक मेल इज मैरिड विद ए कैरियर वुमन, यस, ऐसे लिखा होता है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हीमोफिलिक मेल जो है दैट इज मैरिड विद ए कैरियर वुमन। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप जो होगा, उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये मेल है ये हीमोफिलिक है, इसको हीमोफीलिया है क्योंकि इसका एक्स जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर हीमोफीलिया के लिए एलील है। लेकिन इस फीमेल को हीमोफीलिया नहीं है क्योंकि इसके पास जो एक एक्स है वो नॉर्मल है और दूसरा एक्स जो है उस पर हीमोफीलिया के लिए जीन है। अब हमने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद ये इंडिविजुअल बना यहाँ पे, अगर आप क्रॉस करेंगे तो ये इंडिविजुअल, ये फीमेल है लेकिन ये कैरियर है, इसने एक एक्स जो लिया वो इस फादर से लिया जिसपे ये एच है, और दूसरा एक्स इसने मदर से लिया है जो नॉर्मल है, तो ये कैरियर डॉटर है, कैरियर है लेकिन हीमोफिलिक नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये दूसरा ऑफस्प्रिंग है, ये एक मेल है लेकिन इसमें कहीं पे हीमोफीलिया जीन नहीं है, एक्स पे नहीं है, राइट। तो ये एक नॉर्मल मेल है, ये कैरियर है, ये नॉर्मल है। अब इसको देखिए, इस कंडीशन को, इसने एक एक्स जो लिया है वो मदर से लिया है जिसपे हीमोफीलिया के लिए जीन था, और दूसरा एक्स जो लिया है वो फादर से लिया है, उस पे भी उस एक्स पे भी हीमोफीलिया के लिए जीन था, तो ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। तो फिर से वही बात जो मैंने इससे पहले डिस्कस की, तो यहाँ पे ये कंडीशन तभी अराइज हो, ये हीमोफिलिक फीमेल है,
इस फीमेल को हीमोफीलिया है। लेकिन कब है? अब देखिए दोनों एक्स पे मैंने ऊपर जो है H लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों एक्स पे, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे हीमोफीलिया के लिए जीन है। ये एक होमोजाइगस कंडीशन है एंड ओनली इन दिस कंडीशन द हीमोफीलिया कैन अपीयर इन द फीमेल, राइट। अब इस मेल को देखिए यहाँ पे, इस मेल को देखिए यहाँ पे, इसको भी हीमोफीलिया है, हालांकि इसके पास एक ही एक्स है और उस एक्स पे हीमोफीलिया के लिए जीन है, राइट। तो यहाँ पे जो है मेल इज इफेक्टेड और ये फीमेल भी इफेक्टेड है, क्योंकि इसने जो दो एक्सेस लिए, रिसीव किए पेरेंट से, उन दोनों एक्सेस पे हीमोफीलिया के लिए जीन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने फिर से समझी कि ये जो है ये फीमेल, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए इसको हीमोफीलिया होगा, ये हीमोफिलिक है। और ये जो यहाँ पे मेल है, ये जो सन है यहाँ पे, राइट, इसको भी हीमोफीलिया होगा, राइट, क्योंकि इसके पास दूसरा क्रोमोसोम जो है वो Y है, उस पर कोई नॉर्मल एलील नहीं है। लेकिन जो बात एक्चुअली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है, ये जो मेल है, अगर आप इस मेल को देखेंगे, यहाँ पे एक ही मेल है, ये सॉरी, यहाँ पे एक ही हीमोफिलिक मेल है, मेल्स दो हैं, ये सन है, ये भी सन है, लेकिन ये नॉर्मल सन है, और ये जो सन है इसको हीमोफीलिया है। लेकिन अगर आप इस सन को देखेंगे, इस मेल इंडिविजुअल को देखेंगे, इसको ये हीमोफीलिया जो मिला, ये डिसऑर्डर जो इसको मिला, ये इसको मिला इस मदर की वजह से। इट हैज़ रिसीव्ड दिस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर। इस मेल इंडिविजुअल ने, इस सन ने ये एक्स क्रोमोसोम मदर से रिसीव किया है, राइट। तो इसकी जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस जो है दैट इज फ्रॉम मदर, राइट। सो दिस मेल इज इफेक्टेड, ये मेल जो इफेक्टेड यहाँ पे हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम दैट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द मदर। अच्छा, उसके बाद अब इस मेल को लीजिए, इसी सन को लीजिए, इसी मेल इंडिविजुअल को लीजिए, यहाँ पे देखिए हीमोफिलिक मेल, ओके लेट मी राइट, ये एक हीमोफिलिक मेल है जो अभी बना, जो अभी डेवलप हुआ जब हमने क्रॉस किया था इस फीमेल को जो कैरियर है और इस मेल को जो हीमोफिलिक है। और यहाँ पे भी जो ये मेल बना, ये मेल हीमोफिलिक है बिकॉज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम दैट इट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द मदर। अब देखिए आप, इस इंडिविजुअल को हमने फिर से लिया और इस इंडिविजुअल को हमने क्रॉस किया, इसकी मैरिज की हमने एक नॉर्मल फीमेल के साथ। यहाँ पे देखिए इन दो एक्स क्रोमोसोम्स को, यहाँ पे कोई हीमोफीलिया के लिए जीन नहीं है, तो ये एक नॉर्मल वुमन है, एक नॉर्मल फीमेल है, इसको कोई हीमोफीलिया नहीं है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद फिर से इंडिविजुअल्स बने, इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया, ए हीमोफिलिक मेल, अगेन ए हीमोफिलिक मेल इज क्रॉस्ड विद, मैरिड विद ए नॉर्मल वुमन। अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो बने वो क्या बने, ये एक डॉटर है, कैरियर है, ये भी एक डॉटर है, कैरियर है, राइट। ये जो सन यहाँ पे डेवलप हुआ, इसको हीमोफीलिया नहीं है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, और ये भी यहाँ पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मेल इंडिविजुअल जो बने, इन्होंने जो एक्स क्रोमोसोम लिया वो इस नॉर्मल फीमेल से लिया, मदर से लिया, इसीलिए दोनों नॉर्मल है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल बना, हीमोफिलिक इंडिविजुअल बना था, जिसको यहाँ पे हमने क्रॉस किया, ये बना क्योंकि इसने जो एक्स क्रोमोसोम रिसीव किया था वो मदर से रिसीव किया था, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये कैरियर इंडिविजुअल्स बने, ये कैरियर फीमेल्स, कैरियर्स, यहाँ पे जो ये दो कैरियर्स बने, इनके पास जो ये जीन है, इनके पास जो ये एलील है, ये इनको मिला कहाँ से, फ्रॉम देयर फादर। इनके पास जो ये जीन है, आप खुद क्रॉस करके देख सकते हैं, तो इनके पास ये एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के लिए जो जीन है इफेक्टेड नहीं है, कैरियर्स हैं, लेकिन जीन जो है इनके पास वो इनके फादर से मिला है, फादर ने इनको ये डोनेट किया है, दिया है, राइट। तो ये जो इनहेरिटेंस है, ये थोड़ी डिफरेंट इनहेरिटेंस है ऑटोसोम से, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे इस सन को जो ये कैरेक्टर मिला, हीमोफीलिया का कैरेक्टर मिला, मदर की वजह से मिला, रिसीव फ्रॉम द मदर। और इसने ये जीन, यहाँ पे इसको हमने क्रॉस किया फिर से, इसने ये जीन पास ऑन किया अपनी डॉटर्स को। सी अगेन, लिसन अगेन, इस सन को जो हमने यहाँ पे इसको हमने सर्कल में रखा है, राइट। तो ये सन जो है ये एक हीमोफिलिक मेल है, और इस हीमोफिलिक मेल को ये जो एक्स क्रोमोसोम मिला है हीमोफीलिया के लिए, मदर से मिला है। अब इसी हीमोफिलिक मैन को, सन को हमने यहाँ पे फिर से क्रॉस किया एक नॉर्मल वुमन के साथ, लेकिन इसने ये अपना जीन दिया अपनी डॉटर्स को।
तो ये जो इनहेरिटेंस है, कौन सी इनहेरिटेंस है, शाबाश, कौन सी इनहेरिटेंस है, मदर जो है, ये मदर राइट, ये जीन दे रही है अपने सन को दे रहे हैं, और ये सन जो है ये अपना हीमोफिलिक जीन जो है ये अपने डॉटर्स को देता है, ये डॉटर्स को ये ट्रांसमिट करता है, डॉटर्स। तो ये जो इनहेरिटेंस है, वायर ए मदर इज पासिंग द जीन, defective gene, abnormal gene to the son, and son is affected, and son is passing the gene to his daughters. This type of inheritance is known as crisscross inheritance. Crisscross means zigzag, एक zigzag inheritance है। अदरवाइज जो होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी हो सकता था इसका, मदर इज गिविंग टू द डॉटर एंड फादर इज गिविंग टू द सन, बट दैट इज नॉट हैपनिंग हियर, नो, नॉट एट ऑल। मदर इज गिविंग द जीन, मदर इज पासिंग द जीन टू द सन एंड सन इज पासिंग द जीन टू द डॉटर्स. That is interesting. And this type of inheritance where a mother is passing the gene to the son and sons are passing the gene to the daughters, to their daughters, they may be carriers, they may be affected, that is secondary question, but they are passing the gene to their daughters. This type of inheritance is called a crisscross inheritance. And here you have to understand that this crisscross type of inheritance is typical to all the X-linked recessive disorders. Yes, this crisscross inheritance is typical to all the X-linked recessive disorders, and this is the most important character that makes the X-linked recessive disorders different from autosomal recessive disorders, different from the even X-linked dominant disorders. This crisscross inheritance, because it is only found in the X-linked recessive disorders where a mother is passing the gene to the son and son is passing the gene to the daughters, so forth and so on, right? So this is only the characteristic feature of X-linked recessive disorders, and this is characteristic feature of hemophilia as well, because hemophilia is also an example of X-linked recessive disorders. तो हीमोफीलिया में भी यही होगा, एक हीमोफिलिक कैरियर फीमेल जो है ये अपना ये जीन देगी सन को, राइट, और उसके बाद वो सन जो है वो अपना ये जीन जो है पास ऑन करेगा टू द डॉटर, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द inheritance of hemophilia. So hemophilia is showing crisscross inheritance like all other X-linked recessive disorders. Let me rub this first. आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीटेडली देखिए ताकि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आपको वो समझ आ सके, राइट। अब चलिए, so far as types are concerned, types of hemophilia, ये दूसरा पॉइंट है इस टॉपिक का, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है इसके जनरली जो है 3 टाइप्स होते हैं। सो फार एज हेरिटेरी डिसऑर्डर्स आर कंसर्न, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर कंसर्न, हीमोफीलिया इज कंसर्न, तो 3 टाइप्स के हीमोफीलिया जो हैं होते हैं, राइट। जनरली 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया दैट आर कॉमन। तो एक हीमोफीलिया जो है इसको कहते हैं हीमोफीलिया ए, इसको कहते हैं हीमोफीलिया ए, इसको क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया, इसको क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं हीमोफीलिया बी। और ये जो हीमोफीलिया बी है इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, इसको क्रिसमस डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वी विल डिस्कस लेटर। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिसऑर्डर भी कहते हैं, राइट।
और तीसरा जो हीमोफीलिया है जो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये दो ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत ही कम कंडीशंस में देखा जाता है, रेयर कंडीशन में देखा जाता है, तो उसको हीमोफीलिया सी कहते हैं। उसको हीमोफीलिया सी कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हीमोफीलिया होते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा जो होता है दैट इज़, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये है, दैट इज़ हीमोफीलिया ए और क्लासिकल हीमोफीलिया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन, दैट इज़ 80% इज दिस वन, राइट। ये जो है दिस इज 80%. So far as X-linked recessive disorders are concerned, this hemophilia A and hemophilia B, let me tell you first, let me make it clear. Hemophilia A and hemophilia B both are X-linked recessive disorders. Hemophilia A और hemophilia B जो हैं ये दोनों X-linked recessive disorders हैं, यानी इनका जो एलील हो सकता है वो X पे हो सकता है और दोनों के लिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। मदर विल पास ऑन द जीन टू द सन एंड सन विल पास ऑन टू द डॉटर्स, राइट। तो ये इन दोनों के लिए है, लेकिन इस सी को, यानी तीसरा वाला जो हीमोफीलिया सी, ये डिफरेंट है। आप इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं, इसको अलग रख सकते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया सी जो है ये X-linked recessive disorder नहीं है, लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन के लिए इसको यहाँ पे मेंशन किया। अदरवाइज we should exclude this because hemophilia C is not an X-linked recessive disorder. So first you have to make it clear that hemophilia C is not an X-linked recessive disorder. Then what? ये जो hemophilia C है, it is actually the autosomal recessive disorder. Hemophilia C जो है ये एक autosomal recessive disorder है और इसके जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे होते हैं। इसके जो एलील्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे होते हैं। तो इसको आप पहले ही सॉल्व कर लीजिए। हीमोफीलिया सी जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो अभी हमने डिस्कस किया क्रॉसेस से, तो ये सारी चीज़ें नहीं है हीमोफीलिया सी में। वो बिल्कुल बाकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की तरह है और बराबर चांसेस हैं, मेल के लिए 50% और ये फीमेल में भी हो सकता है 50%, राइट। लेकिन इसके लिए यहाँ पे इन दोनों के लिए वही चीज़, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के लिए मेल इज जनरली इफेक्टेड एंड फीमेल इज जनरली ए कैरियर एंड फीमेल कैन बी हीमोफिलिक इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, राइट। सो हीमोफीलिया ए जो है ये 80% है। अगर आप हीमोफीलिया बी को देखेंगे तो ये ओनली 20% है। अच्छा, ठीक है। तो इसकी ऑकरेंस ज़्यादा है और इसकी ऑकरेंस कम है, राइट। अब ये हीमोफीलिया जो है ये किस फैक्टर की वजह से है? X-linked recessive disorder है, राइट। X पे जीन होगा, लेकिन वो किसके लिए होगा? X पे जो जीन है जो नॉर्मली होना चाहिए था वो एक क्लॉटिंग फैक्टर के लिए होना चाहिए था और वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो है फैक्टर 8। बहुत सारी क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसके लिए एक कैस्केड थ्योरी है, मैकफार्लेन थ्योरी है। अगर आपने कहीं पे 11th में देखा होगा, क्योंकि मैं 12th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, और जिनको नीट क्लासेस देने हैं, नीट का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए भी एक क्लास है, राइट। तो ये जो है फैक्टर 8 जो है ये उन्हीं फैक्टर्स में से एक है जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, almost 14 factors are there, 1 to 14, right, which are required for the clotting mechanism. There are 2 types of mechanisms which are responsible for the blood clotting. One is called extrinsic clotting mechanism, second is called intrinsic clotting mechanism. वो क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि उन दोनों मैकेनिज्म्स के लिए, उन क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए और उन्हीं फैक्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो ज़रूरी होना चाहिए इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए, वो है फैक्टर 8, राइट। तो जब ये फैक्टर एब्सेंट होगा, जब ये फैक्टर मिसिंग होगा या ये डिफेक्टिव होगा, राइट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये मिसिंग हो सकता है कम्प्लीटली, ये डिफेक्टिव हो सकता है। क्यों हो सकता है मिसिंग, क्यों हो सकता है डिफेक्टिव? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे इसके लिए जो एलील था, जीन था, वो डिफेक्टिव है, उसमें डिलीशंस हो गई हैं या वो कम्प्लीटली मिसिंग है, राइट। उससे फीमेल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं
उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक पे प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे पे नॉर्मल एलील है, तो one allele is enough to code for this clotting factor, that is factor 8. ओके, यहां पे भी थोड़ा सा एक और मसला है, वो ये है एक्चुअली अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 इसके 2 सेगमेंट्स होते हैं, 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, आई शुड से लाइक दिस इज करेक्ट वे टू एक्सप्रेस। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, दो सब यूनिट्स का बना हुआ है, 2 फैक्टर्स का बना हुआ है खुद, फैक्टर 8, राइट। इसका एक लार्जर सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट, ओके, और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो जीन एक्स पे है, एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है, राइट, जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन है, इफ दैट मिसिंग एंड देन देयर विल बी हीमोफीलिया, वो जीन, वो एलील इस स्मॉल सब यूनिट के लिए कोड करता है, दैट्स कोडिंग फॉर द स्मॉल सब यूनिट, नॉट फॉर द लार्ज सब यूनिट, दैट्स कोडिंग फॉर द स्मॉल सब यूनिट। और यही स्मॉल सब यूनिट जो है फैक्टर 8 का, that is actually the more important for the intrinsic mechanism of the clotting, not the large subunit. लेकिन ये दोनों होने चाहिए क्योंकि ये स्टेबलाइज होगा जब ये दोनों साथ होंगे, लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट शुड बी टुगेदर, राइट। और इसके लिए जो जीन है वो एक्स पे है, लेकिन इस लार्ज सब यूनिट के लिए जो जीन है वो एक्स पे नहीं है, वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वो ऑटोसोम पे है, वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे है। तो वो जो फैक्टर है वो आएगा, राइट, यानी लार्ज सब यूनिट के लिए जीन आएगा, राइट, और उसके बाद स्मॉल सब यूनिट के लिए जीन जो आएगा वो एक्स क्रोमोसोम से आएगा। तो दोनों जब एक्सप्रेस होंगे तो दोनों सब यूनिट्स बनेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लार्ज सब यूनिट प्लस स्मॉल सब यूनिट, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो इसी को हम फैक्टर 8 कह सकते हैं। तो असल में ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल सब यूनिट को स्टेबलाइज करने के लिए एक लार्ज सब यूनिट चाहिए, वो जो लार्ज सब यूनिट है उसके लिए जो जीन आएगा वो ऑटोसोम से आएगा, वो एक ऑटोसोम से आएगा, वो क्रोमोसोम नंबर 12 से आएगा, राइट, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, एक तो ये है कि कंप्लीटली ये पूरा फैक्टर जो है ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, तो कंप्लीटली द फैक्टर 8 इज मिसिंग, कंप्लीटली मिसिंग, एक्सक्लूसिवली मिसिंग, राइट। तो जब ये कंप्लीटली मिसिंग होता है ऑब्वियसली तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जो है क्लॉटिंग का वो नहीं होगा, तो ये ही होगा, हीमोफीलिया होगा, राइट, ब्लीडर्स डिजीज होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये स्मॉल सब यूनिट जो है, यानी एक्स क्रोमोसोम पे जीन है ये स्मॉल सब यूनिट के लिए, तो लार्ज सब यूनिट जो है मैं बोल रहा हूँ इसके लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, और जो यूनिट एक्चुअली ज़्यादा चाहिए क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए वो स्मॉल सब यूनिट है, लेकिन इस स्मॉल सब यूनिट को स्टेबलाइज करने के लिए लार्ज सब यूनिट भी चाहिए। तो दोनों होने चाहिए अगर नॉर्मली क्लॉटिंग होती है, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग जो होनी चाहिए, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस डिसऑर्डर में, हाँ यस, इस डिसऑर्डर में जिसको हमने हीमोफीलिया ए कहा, क्लासिकल हीमोफीलिया कहा, तो जनरली इस डिसऑर्डर में ये वाला सब यूनिट एब्सेंट होता है, दिस वन इज एब्सेंट। तो ये कभी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो एक्स के साथ है, और एक्स का जो जीन है वो स्मॉलर सब यूनिट के लिए है, इसके लिए नहीं है, राइट। इसके लिए जो जीन है वो तो क्रोमोसोम नंबर 12 से आता है, वो एक रेयर कंडीशन होगी कि इसका जीन भी जो है वो डिफेक्ट होगा, मिसिंग होगा, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, ये वाला होता है, कभी कभी ये स्मॉलर सब यूनिट जो है वो है, यानी एक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स पे नॉर्मल एलील है एक फैक्टर के लिए, राइट। लेकिन लार्ज सब यूनिट का जो ये जो फैक्टर है, ये जो लार्ज सब यूनिट के लिए जो जीन है, सॉरी, लार्ज सब यूनिट के लिए जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 12 पे वो डिफेक्टिव है, वो मिसिंग है, राइट। तो ये लार्ज सब यूनिट उस टाइम नहीं होगा, तो ये जब नहीं होगा तो इस पे फर्क पड़ेगा, हालांकि ये था, ये है, राइट, लेकिन इस पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इसको स्टेबलाइज होने के लिए क्या चाहिए, लार्ज सब यूनिट चाहिए, वही नहीं है, राइट। तो वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है। उस ब्लीडिंग, उसमें भी ये ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा नहीं होगी, उतनी नहीं होगी, उतनी सीवियर कंडीशन नहीं होगी जितनी यहाँ पे होगी हीमोफीलिया ए में होगी, जहाँ पे एक स्मॉलर सब यूनिट जो है जिसका जीन एक्स पे है, राइट। तो इस कंडीशन को हम 1
विली ब्रैंड सिंड्रोम भी कहते हैं, वॉन विली ब्रैंड सिंड्रोम। ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स पे नॉर्मल एलील है, स्मॉलर सब यूनिट के लिए, फैक्टर 8 के एक हिस्से के लिए एक जीन है, लेकिन दूसरा जो उसको चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए उसका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, वो मिसिंग है, तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा फैक्टर 8 का, राइट। तो उस सूरत में इस कंडीशन को ये कहते हैं दैट इज वॉन विली ब्रैंड सिंड्रोम, वॉन विली ब्रैंड सिंड्रोम। चलिए, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बोला, अगर आपको समझ आया तो दैट्स बेटर। तो जनरली हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो ये है कि हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया ए जो है, ये क्लासिकल हीमोफीलिया है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया है। और इसके लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, जिसके साथ प्रॉब्लम है, फैक्टर जो है जिसके साथ प्रॉब्लम है, राइट, वो है फैक्टर 8, राइट, वो है फैक्टर 8। इस फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल फैक्टर होना चाहिए, इसका एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो मैंने इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की कैसे वो कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए दो अलील्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्स से आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा क्रोमोसोम नंबर 12 से आता है। एनीवेज, लेकिन हीमोफीलिया ए की जब हम बात करें तो उसमें ओब्वियसली स्मॉलर सब यूनिट जो होगा वो मिसिंग होगा, वो एब्सेंट होगा, वो डिफेक्टिव होगा। तो ये क्लासिकल हीमोफीलिया जो है ये अपेयर हो जाएगा इंडिविजुअल में। फाइन। हीमोफीलिया बी जो है इसको क्रिसमस डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसको रॉयल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फैक्टर 8, ये फैक्टर 8 की वजह से नहीं है, एक दूसरा फैक्टर चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए। तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको फैक्टर 9 कहते हैं, दैट इज़ IX, उसको फैक्टर IX कहते हैं। इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, राइट, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। दैट इज़ वाई दिस डिसऑर्डर इज नोन एज क्रिसमस डिसऑर्डर और रॉयल डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं, रॉयल जो है ये पहले देखा गया है। क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड से, तो वो कैरियर थी, क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड से, वो इस डिसऑर्डर के लिए, हीमोफीलिया के लिए कैरियर थी, उसको हीमोफीलिया नहीं था, लेकिन उसने ये जीन, हीमोफीलिया का जीन क्वीन विक्टोरिया ने अपने बेटे को दिया, सन को दिया, राइट। तो वो ऑब्वियसली हीमोफिलिक था, लेकिन वो जिंदा रहा, राइट, वो उसने सर्वाइव किया। उसके बाद उसने अपना ये जीन, अपना ये अलील जो है पास ऑन किया अपनी डॉटर्स को, और इस तरह से डॉटर्स जो हैं उनकी मैरिज हुई यूरोप के डिफरेंट रॉयल फैमिलीज़ में। तो इस तरह से ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ में फैल गई, ट्रांसमिट हो गई, राइट। तो इसीलिए इस हीमोफीलिया बी को रॉयल डिसऑर्डर भी कहते हैं, रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। ये पहले क्वीन विक्टोरिया का था। क्वीन विक्टोरिया जो थी उसको उसके पास ये अलील था, लेकिन वो हीमोफिलिक नहीं थी, वो कैरियर थी। उसने ये जीन अपने बेटे को पास ऑन किया और उसने अपनी डॉटर्स को पास ऑन किया, एंड इन दिस वे ये पूरे रॉयल फैमिलीज़ में ट्रांसमिट हो गई ये डिजीज़, राइट। एनीवेज, तो ये था हीमोफीलिया बी के बारे में। पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि हीमोफीलिया ए, ये हीमोफीलिया सी जो है, हीमोफीलिया सी जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ये क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस का जो ये फिनोमिनन है ये इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए बराबर चांसेस हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि मेल इज़ जनरली इफेक्टेड एंड फीमेल इज़ जनरली कैरियर, वो इसके लिए नहीं है, राइट, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज़ व्हाट हीमोफीलिया सी। और यहाँ पे ये चीज़ है कि हीमोफीलिया सी जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ए फैक्टर, द फैक्टर इज़ XI। ये 11 फैक्टर जो है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट
कहते हैं उस फैक्टर को, तो वो भी चाहिए क्लॉटिंग के लिए। लेकिन आपको याद रहे कि ये फैक्टर 11 जो है इसके लिए जीन जो है एलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे है, राइट। तो ये दो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज हीमोफीलिया ए, that is because of the lack of a factor 8, and hemophilia B that is due to the lack of factor 9. ये दो जो हैं these two are actually X-linked recessive disorders. These two are X-linked recessive disorders where the female is generally carrier, male is affected and showing this criss-cross type of inheritance. अब जो चीज़ है वो ये है, अब जिनको ये ब्लीडर्स डिजीज़ हैं, चाहे हीमोफीलिया ए है या हीमोफीलिया बी है या हीमोफीलिया सी है या वॉन विली ब्रैंड सिंड्रोम है, तो उनमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगी, एमरजेंसी साइंस और सिम्टम्स जो उनमें होंगी उनको हम कैसे पहचान लेंगे कि इनको ये हीमोफीलिया है, राइट। क्लॉटिंग जो है, एक तो है कि फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल जो है हमने उसको किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए लिया था, फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लॉटिंग ही नहीं हो रही है, कोई ब्लड वेसल जो है वो रैप्चर हो गई और ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, तो तब हमें पता चला कि इसको हीमोफीलिया है, या इसकी बॉडी पे कोई किसी जगह पे ट्रॉमा हो गया तो फिर वहाँ से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, राइट। तो ये दूसरा है। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं, विदाउट ब्लीडिंग एंड ऑल दैट वी कैन रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल विद हीमोफीलिया। जैसे इनके जो साइंस हैं, क्लिनिकल साइंस जो हैं, साइंस वो ये हैं कि हीमोफिलिक पेशेंट्स को, हीमोफिलिक पेशेंट जिनको ये हीमोफीलिया होता है, मेल्स को जनरली, तो उनमें बहुत सारे जगह पे पेन्स बॉडी में पेन हो जाती है। जैसे पेन जो है ये मसल्स में हो सकती है, मसल पेन, ये जॉइंट्स में पेन भी और स्वेलिंग भी, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, पेन, राइट। या शोल्डर पेन जो है, शोल्डर पेन हो जाता है, ये बार बार हो जाता है शोल्डर पेन, राइट। तो ये जो पेन्स होते हैं, वाई दीज एक्स, बिकॉज ऑफ हीमोरेजेस इन दीज रीजन्स, क्योंकि ये जो रीजन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, शोल्डर्स की मैंने बात की, यहाँ पे भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं, तो ये जो हैं दीज आर द टिश्यूज और वी कैन से ऑर्गन्स विच आर मोर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, These are more subjected to mechanical stress, और मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, वियर टीयर हो जाता है वहाँ पे, तो कोई ब्लड वेसल जो है वो रैप्चर हो गई। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो ब्लड वेसल रैप्चर हो गई तो ब्लीडिंग हो गई, लेकिन वो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस रहती है, तो क्लॉट बनता नहीं है, तो उसकी वजह से फिर उन जगह पे पेन्स हो जाते हैं, पेन्स इन मसल्स, जॉइंट स्वेलिंग एज वेल, राइट। और उसके बाद जो है नोज ब्लीडिंग हो सकती है, इन कंटिन्यूसली नोज ब्लीडिंग इनको होगी, राइट। और ड्रास्टिक कंडीशंस में, सीवियर कंडीशंस में कभी कभी ब्रेन डैमेज भी हो जाता है, अगर वहाँ पे कोई ब्लड वेसल ऐसे जो है रप्चर हो गई और उसके बाद हेमोरेजेस हो गए, ब्रेन डैमेज हो सकता है, राइट। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इन इंडिविजुअल्स में नज़र आते हैं जिनको ये हीमोफीलिया होता है, चाहे वो हीमोफीलिया ए हो, हीमोफीलिया बी हो, इवन हीमोफीलिया सी हो, या और कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, इवन वो पहले से नहीं है, मतलब हेरिडिटरी नहीं है, वो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड कैसे हो सकता है, वो यानी एक्वायर्ड मीन्स कि वो लाइफ टाइम में हुआ, पहले नहीं था, पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, बाद में हुई। बाद में कैसे हुई? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हीमोफीलिया के लिए जो फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया ए के लिए जो फैक्टर है फैक्टर 8 या फैक्टर 9, राइट, ये फैक्टर्स जो सिंथेसाइज होते हैं ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, फैक्टर 8 भी और फैक्टर 9, इनकी जो सिंथेसिस होती है वो लिवर में होती है। और सिंथेसिस के लिए, इनकी सिंथेसिस के लिए एक विटामिन की ज़रूरत पड़ती है और उस विटामिन को कहते हैं विटामिन के। विटामिन के की ज़रूरत इनके लिए पड़ती है जो एक को फैक्टर का काम करता है इनकी सिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल को लिवर के साथ प्रॉब्लम है, लिवर का जो पैरेन्काइमा है, हेपेटोसाइट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से विटामिन जो है के है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, राइट, ओके। और दूसरा जो है जो सिंथेसिस है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी।
तो हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर इस समय पे नहीं है, ये तो एक्वायर्ड है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअली जीन्स के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम लिवर के साथ है, जहाँ पे ये हीमोफिलिक फैक्टर्स जो हैं यानी 8 और 9 बनते हैं, राइट। तो ये एक दूसरा पहलू है। एनीवेज, तो अब जिस चीज़ की हम एक्चुअली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, यानी पहले से ही जीन जो है वो एक्स पे प्रॉब्लमेटिक है, डिफेक्टिव है, या वो कम्प्लीटली मिसिंग है, वेदर इट इज़ जीन फॉर द फैक्टर 8 और फैक्टर 9, तो वो हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, राइट। नाउ उसके बाद ये साइंस एंड सिम्टम्स के बाद हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और डायग्नोसिस जो है ये इवन बिफोर जो है बिफोर द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल हो सकती है, जेनेटिक टेस्टिंग से, जो बहुत ही एडवांस्ड बन चुकी है नाउअडेज। तो जेनेटिक टेस्टिंग से इसकी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट, डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस एंड ऑल दैट। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर मतलब फॉर एग्जांपल इस तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स हैं बच्चे में या इवन अडल्ट इंडिविजुअल में, तो फिर उसके लिए भी ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग देख सकते हैं, तो उससे भी पता चल सकता है कि इस इंडिविजुअल को हीमोफीलिया है, राइट। ट्रीटमेंट जो है फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया के लिए ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो फैक्टर्स एब्सेंट हैं, जैसे फैक्टर 8 हैं ये एब्सेंट हैं, राइट, या फैक्टर 9 है ये एब्सेंट हैं, तो डायग्नोसिस के बाद एसए करने के बाद फैक्टर 8 जो है 9 जो है ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन जो है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये सिंथेसाइज किए गए हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, because of its advent we have synthesized these factors in vitro, right, factor 8 और factor 9, तो इनको हम दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को। we can transfuse these factors, right, to the patients who are suffering from the hemophilia. even हम कुछ medicines का भी यूज कर सकते हैं, the medicines which stimulate the synthesis of factor 8 and factor 9. so this is all about the hemophilia, and this was first example of X-linked recessive disorder. in the upcoming lecture I would like to throw light on one more example of X-linked recessive disorder, and that will be color blindness. That's it.